ایرانی حکام نے امریکہ سے معاہدے کی خبریں بے بنیاد قرار دے دیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسماعیل بقائی نے کہا خطے میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ ادھر باقر کالیباف نے دھماکے دار بیان جاری کیا، کہا رعایتیں مذاکرات سے نہیں میزائل سے حاصل کی جاتی ہیں۔ کوئی معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ خطے کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس ہے اور اس وقت ایران کی تمام تر توجہ اور سفارتی کوششیں صرف اور صرف جنگ کے خاتمے اور امن کی بحالی پر مرکوز ہیں۔ ایسے میں باقر کالیباف کا بھی دلچسپ بیان سامنے آیا۔ ایرانی اسپیکر نے ضمانتوں اور بیانات پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ چیف مذاکرات کار نے کہا ایران معاملات کا فیصلہ صرف عملی اقدامات کی بنیاد پر کرے گا۔ ہم رعایتیں مذاکرات کے ذریعے نہیں بلکہ میزائلوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ مذاکرات میں صرف دوسروں کو اس حقیقت کا احساس دلاتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ نے ایران کے خلاف مزید جنگ کا عندیہ دے دیا ہے۔ پیٹ ہیگزیٹ نے سنگاپور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح سے تیار ہے۔ امریکی اسلحہ ذخائر وافر ہیں، کسی بھی کارروائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ عالمی سلامتی کے لیے امریکہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا رہے گا۔ مودی نے پھر منہ کی کھائی، پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ پاکستان کی سرفرازی اور بھارت کی شرمندگی عالمی میڈیا کی زینت بن گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ پاکستان کو سراہ رہی ہے اور مودی کو آئینہ دکھا رہی ہے۔ پاکستان پورے جہان میں نامور، مودی کی حکمت عملی منہ کے بل گری، عالمی سیاست کی بساط پر بھارت کو مات دے دی۔ الجزیرہ کی رپورٹ پاکستان کے عزم و استقامت اور مودی کے مکروہ منصوبوں کا پردہ فاش کر گئی۔ رپورٹ میں پاکستان کو خطے میں اثر و رسوخ رکھنے والی قوت قرار دیا۔ کہا پاکستان بیک وقت امریکہ، چین، ایران اور سعودی عرب سے مؤثر رابطے میں ہے۔ رپورٹ 2025 کی جنگ کو اس کا ٹرننگ پوائنٹ بتاتی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے صفاتی اور بیانی کی سطح پر برتری حاصل کی۔ پہلگام واقعے پر بھارتی بیانیہ دنیا بھر نے رد کیا۔ پاکستان اور چین کی قریبی شراکت داری، خلیجی ممالک کے ساتھ بڑھتا دفاعی تعاون اور بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر ہوتے تعلقات نے خطے میں نئی صفاتی جہتیں پیدا کی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ مودی حکومت کی مسلم مخالف پالیسیوں اور مذہبی اقلیتوں سے متعلق اقدامات پر عالمی سطح پر تشویش بڑھی، جس سے بھارت کی بین الاقوامی ساکھ متاثر ہوئی۔ ماہرین کے مطابق پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جو بیک وقت بڑی عالمی و علاقائی طاقتوں کے ساتھ متوازن اور مؤثر تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ فلسطین کو تسلیم کرنے تک ابراہیمی معاہدے پر کوئی لچک نہیں دکھائی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دو ٹوک بتا دیے، کہا پاکستان امن کا معمار ہے اور ایران امریکہ مذاکرات میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ بولے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کو عالمی سطح پر نئی شناخت ملی۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 22 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ مٹی کا تیل بھی 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات، حکومت کے عوام کو ریلیف فراہمی کے لیے اقدامات۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کے نرخ 22 روپے گھٹ کر 381 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئے۔ ڈیزل کی قیمت بھی 22 روپے کمی سے 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر کی سطح پر آ گئی۔ مٹی کا تیل بھی 41 روپے 44 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ نئی قیمت 272 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے کی کمی کی گئی ہے، مگر عوام خوش نہیں ہے۔ شہریوں کی جانب سے مزید کیا کچھ مطالبات کیے گئے، آگے آپ کو سنواتے ہیں۔ کمی کرنی چاہیے، غریب آدمی کو ریلیف ملے۔ جب یہ بڑھاتے ہیں تو یہ 100-150 تک بڑھاتے ہیں، اور جب سستا کرتے ہیں کبھی 5 روپے کرتے ہیں، کبھی 7 روپے کرتے ہیں اور کبھی 22 روپے کرتے ہیں۔ 22 روپے تو کم کیے ہیں، پھر بھی ان کی مہربانی، مگر اصل بات یہ ہے کہ کم سے کم 100 روپے کا تو کیا نام ہے اس کا فرق ڈلنا چاہیے تھا۔ پیٹرول مسلسل جو ہے بڑھتا رہا ہے، کبھی 80 روپے کبھی تو 22 روپے کا۔ خیر یہ بھی حکومت کی مہربانی ہے کہ عوام پہ جو ہے ایک احسان کیا ہے اور 22 روپے کا ریلیف دے کے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست گزار نے وفاقی حکومت اور اوگرا کو فریق بنایا۔ ان کا موقف ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عالمی مارکیٹ کے تناسب سے کمی نہیں کی گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا مکمل فائدہ عوام کو منتقل نہیں کیا جا رہا۔ حالیہ کمی کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں غیر معمولی سطح پر ہیں۔
मौसम की सूरत हाल का जिक्र करेंगे। सिंध में सूरज सबा नेज़े पर आ गया। सेंटीग्रेड में जितनी हिद्दत आ रही है उससे ज़्यादा महसूस की जा रही है। हैदराबाद से लेकर मीरपुर खास तक हर खास व आम गर्मी से बचाव के जतन करने लगा। चिलचिलाती धूप, उस पर शिद्दत की तपिश ने पसीने निकलवा दिए। ऐसे में जिस्म जान बचाना है तो सर को ढांपना है, वरना घर में रहना गनीमत जाने। शहरी यही पैगाम दे रहे हैं। गर्मी में वो नहीं निकले, ज़रूरी काम हो तो निकले, सर को ढाँप के निकलें और कपड़े को ठंडा करके निकलें, पानी लगा के निकले। सक्खर में दर्जा हरारत 44 से 45 डिग्री हाई हो गया। हैदराबाद का हाल भी मुख्तलिफ नहीं, 41 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री महसूस की जाने लगी। ऐसे में मामूलात शाम तक मौखर कर दिए गए। गर्मी में मीरपुर खास भी खास न रहा। पारा 39 डिग्री हाई हुआ और शिद्दत 49 डिग्री की महसूस हुई। उधर महकमा मौसमियात ने भी खैर की खबर न सुनाई। सिंध में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गर्मी की शिद्दत 48 से 50 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। मरियम, बताइएगा। शहर का गर्मी की लपेट में है। शहर का मौसम शदीद गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्ज हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से शहर कायद में गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री तक महसूस की जा रही है। खुसूसी तौर पर कराची के साहिली इलाकों में गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। क्लिफ्टन, सी व्यू और मुल्हिका इलाकों में जो है वो गर्मी की शिद्दत 50 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है, जबकि मरकज़ी शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर 46, 47 और 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। शहर कायद में समुद्री हवाएं मुसलसल वक्फे से चल रही हैं, ताहम इस वक्त समुद्री हवाएं जो हैं वो मुकम्मल तौर पर थमी हुई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की जो ये शिद्दत है वो आइंदा आने वाले एक हफ़्ते तक जो है वो बरकरार रहेगी और मौसम बदस्तूर इसी तरीके से गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। माहिरीन सेहत ने कराची के शहरियों को खुसूसी तौर पर इस मौसम में एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की है और सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक पीक आवर्स के दौरान जो है कराची के शहरी बराह रास्त धूप में निकलने से जो है वो गुरेज करें और अगर निकलते हैं तो सर पर अपने गीला तौलिया जो है वो लाजमी डालें। उसके साथ साथ ठंडे मशरूबात और निमकोल का ज़ायद इस्तेमाल करें ताकि गर्मी के मुज़र असरात उनकी सेहत को मुतासर ना कर सके। जानिए कि ईद की छुट्टियों के बाद वीकेंड आया है तो सयाह मौसम के मज़े लेने मरी पहुंच गए हैं, जहां पे हल्की बारिश में हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठाया जा रहा है। तफसीलात क्या हैं, आरिफ सईद से जानते हैं। बिल्कुल, ईद उल जुहा की तातीलात के बाद लॉन्ग वीकेंड की वजह से मरी में सौ की काफ़ी तादाद पहुंच चुकी है। मरी के तमाम तफरी मकामात माल रोड समेत पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, पतराडा, बूरपन, अजूबिया, नथक गली और दीगर तफरी मकामात पर सेओं ने डेरे डाल रखे हैं। यहाँ का मौसम इस टाइम इंतहाई दिलफरेब है। आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, जिससे मौसम इंतहाई और भी खूबसूरत हो गया है। शाह जो है यहाँ के दीदा ज़ेब और दिलफरेब नज़ारों से जी बर्क नज़र। मेरे साथ इस टाइम एक शाह फैमिली मौजूद है, इनसे पूछते हैं यहाँ के मौसम और नज़ारों कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इधर आके बारिश हो रही है। मैं तो यही कहता हूँ कि सबको आना चाहिए। इधर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा सिस्टम है। इधर साफ़ सुथराई का भी बहुत अच्छा काम है। इधर यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, ठंडा मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। वहाँ पंजाब में बहुत गर्मी है, यहाँ ठीक है। हमारा होटल भी बहुत बेहतरीन है। हम वहाँ दूर से आए घूमने, यहाँ मज़ा आ रहा है आके। हमने शॉपिंग भी की है यहाँ पर आके, बहुत अच्छी जगह। यहाँ सब कुछ बहुत बेहतरीन है, खाने पीने का निज़ाम, सब चीज़ें बहुत बेहतरीन है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है जी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ का मौसम इंतहाई दिलफरेब ठंडा मौसम है, जबकि यहाँ पर हम घूम फिर कर खूब इंजॉय कर रहे हैं जी। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद गर्मी की लहर वफाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बरकरार है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 2 से 4 घंटों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। वज़ीर जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, बताइएगा। देखिए, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से गर्मी की शदीद लहर बरकरार है और जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और जो फील्स लाइक है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में भी तेज़ धूप है, लेकिन बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि ख़ित्ता पोठहार में एक मौसमी निज़ाम तश्कील पा रहा है, जिसके सबब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तलागंग और इसके
गिर्द मौजूद दीगर इलाकों में 2 से 4 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। उसके साथ साथ रावलाकोट, भिम्बर, सियालकोट, नारोवाल, जेहलम, गुजरावाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद, शेखुपुरा, लाहौर और कसूर में आइंदा 1 से 3 घंटों के दौरान तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से मज़ीद बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ में जब से गर्मी में शदीद इजाफ़ा हुआ है तो लोगों की जानिब से एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं और मशरूबात में इजाफ़ा हो गया है, मशरूबात की ख़रीदो फ़रोख्त में भी इजाफ़ा हो गया है। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत के रिहायशी ख्वाहिशमंद भी हैं और मुंतज़िर हैं कि बारिश हो ताकि इस्लामाबाद का मौसम सर्द हो सके, लेकिन इस वक्त शदीद गर्मी है और सूरज गर्मी बरसा रहा है। बहुत शुक्रिया। ईद पर शहरियों ने चटपटे खाबों पर खूब हाथ साफ किए हैं। सख्त गर्मी में गोश्त के ज़ायद इस्तेमाल से गैस्ट्रो और दीगर बीमारियां फैलने का खतरा है। कराची में ईद के तीनों दिन अस्पतालों में मरीजों का रश लगा रहा। टिक्के, कोरमा, कबाब, कड़ाही, बिरयानी कुछ न छोड़ा। ईद पर खाबों का खूब दौर चला। सख्त गर्मी में ज्यादा मिकदार में गोश्त खाना भारी पड़ गया। बसियार कोनी ने बड़ी तादाद में शहरियों को अस्पताल पहुंचा दिया। कै असहाल और बदहजमी के केसेस में इजाफा हो गया। ईद के तीनों रोज अस्पतालों में गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों का रश लगा रहा। कराची के सिविल अस्पताल में ईद के दूसरे रोज 100 से जायद मरीज लाए गए। तीसरे रोज भी 100 से जायद अफराद पेट के मसाइल के बाइस अस्पताल पहुँचे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ज्यादा गोश्त, कम पानी और गैर मतवाजिन खुराक बीमारियों की वजह बन रही है। शहरी गोश्त के साथ सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल करें। साबिक IG सिंध समेत 10 अफसरान और ठेकेदारों के खिलाफ करप्शन रेफरेंस में अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। एंटी करप्शन अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को 9 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। पुलिस, लॉजिस्टिक, फाइनेंस और सरकारी ठेकों में मुबैना करप्शन से मुताल्लिक रेफरेंस में कार्रवाई तेज़ हो गई है। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जनूबी कराची ने नैब रेफरेंस नंबर 20/2/18 में ज़िमनी चलान अदालत में जमा करा दिया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे इजहार सुमरो से। इजहार बताइएगा। IG सिंध पुलिस समेत 10 अफसरान व ठेकेदारों को करप्शन रेफरेंस में एंटी करप्शन अदालत ने तलब कर लिया है। मिलने वाली इतलात के मुताबिक करप्शन रेफरेंस पुलिस, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस और सरकारी ठेकों में मुबैना करप्शन के हवाले से इस सिलसिले में नैब रेफरेंस नंबर 20/2018 में अहम पेशरफ्त हुई है। एंटी करप्शन की जानिब से ज़मनी चालान अदालत में जमा होने के बाद ये नोटिस जारी हुआ है, जिसमें न सिर्फ साबिक IG सिंध पुलिस बल्कि साबिक एडिशनल IGs और महकमा वर्क्स एंड सर्विस के एक अफसर और निजी ठेकेदार शामिल हैं। अदालत ने इन तमाम मुल्ज़िमान को 9 जुलाई को तलब कर लिया है। हम आपको ये बताते चलें कि बोल न्यूज़ को जारी करदा नोटिफिकेशन की कापी मौसूल हो गई है। अदालत ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पेश न होने की सूरत में मुल्ज़िमान के वारंट जारी हो सकते हैं। हम आपको ये बताते चलें कि ये मामला पहले नैब के पास था, जिसके बाद ये मामला एंटी करप्शन के पास आया था और अब एंटी करप्शन ने इस सिलसिले में इस करप्शन रेफरेंस में चालान अदालत में जमा करा दिया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।